dated 16 July 1985. Respected Chairman, sir. Respected Chairman, sir. I want to express my gratitude to the various ministries, public sector undertakings, and Department of the Central Government for prioritizing sports quota recruitment. One second. Interest of the farmer is not served by sloganeering or crocodile tears. Maintain decorum. I know it. You are only politicizing it. You don't want a solution. No, you don't want it. Nothing is going on before. Kisan is your last priority. Kisan is... One second. Listen to me. One second. Please. One second. Can you hear me? One second. क्या हो रहा है? Take your seat. Please go to your seat. I'll tell you right now. What is this? Please take your seat. I will be forced to name and make very strong comments. क्या हो रहा है? ये ड्रामा कर रहे हो? Drama, nothing else but drama. I don't want drama. No. P.T. Usha. I want to express my gratitude to the various ministries, public sector undertakings, and Department of the Central Government for prioritizing sports quota recruitment. Nothing is going on record. It is heartening to witness the support extended to our talented sportspersons, facilitating their inclusion in various government organizations. While acknowledging the positive steps taken, I would like to draw your attention to a critical matter that requires consideration for the continued benefit of sportspersons, recruitment through sports quota. Ask them to sit their seat. I'll take them after some time. The existing policy outlined in DOPT Office Order dated 16/7/1985 only after they go to their seat. special casual leave to 30 days They have to go to their seat. appears to be inadequate for the proper training and development of these athletes. They have to go to their seat. Such a restrictive policy has led numerous I hereby sportspersons to name. either halt their sports careers or withdraw the active sports despite having the potential to excel in sports. Take note. I would like to draw I'll your take it up. attention. First, you go to your seat. Go to your seats first. First, go to your seats. Go to your seats. If you don't go to your seats, I know how to deal with situation. Go to your seats. Go to your seats. One second. रुकिए एक बार. मैं बता रहा हूँ. सुनिए. Honorable members, I had the occasion, and listen to me carefully. We did not work for 5 days. During those 5 days, Rule 267 notices were raised. Not a single one regarding farmer. Now crocodile tears? No, not given. No, not given. I am aware. You are not given. Only now. No. I'll allow Pramod Tiwari after she has concluded. No, तो बैठिए. After one more. After interval. P.T. Usha ji, please continue. Respected Chairman, sir, I want to express my gratitude to the various ministries, public sector undertakings, and departments of the central government for prioritizing sports quota recruitments. It is heartening to witness the support extended to our talented sportspersons, facilitating their inclusion to various government organizations. No, I will not. By acknowledging I will the not allow it. positive step taken, I would like to draw your attention to a critical matter that requires consideration for the continued benefit of sportspersons recruited through the sports quota.
The existing policy outlined in DOPT Office Order dated 16/1985 restricting special casual leave to 30 days appears to be inadequate for the proper training and development for these athletes. Such a restrictive policy has led numerous sportspersons to either halt their sports careers or withdraw from active sports despite having potential to excel in sports. I would like to draw your attention to the special policy implemented by the Indian Railways, which recognize the need for continued training and development of sportspersons. The Indian Railways offers special casual leave and incentives such as cash awards, auto-trade promotions, and increments to meritorious athletes to boost their morale. I propose that the DOPT order dated 16/7/1985 be Dr. Dinesh Sharma, Dr. Dinesh Sharma need to address the issues related to environment protection. माननीय सभापति महोदय, मुझे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दे को सदन के समक्ष उठाने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, पृथ्वी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल, वायु और पर्यावरण का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां पर्यावरण से जुड़े गंभीर संकट उत्पन्न हो रहे हैं। ये संकट हमारी जीवन शैली, औद्योगिक प्रदूषण और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण और अधिक जटिल हो रहे हैं। विशेष रूप से जल संकट की स्थिति चिंताजनक है। विश्व के कुल पेयजल का 4% हिस्सा ही भारत में बचा है, जबकि जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कुल 70% भारत की है। इससे स्पष्ट है कि भारत में जल संसाधन बहुत सीमित हैं और उन पर अत्यधिक दबाव है। इसके अतिरिक्त जल संसाधनों का अति उपयोग और उपेक्षा के कारण पीने योग्य जल का स्तर निरंतर घट रहा है, जिससे भविष्य में जल संकट और गहरा हो सकता है। इसी प्रकार वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हमारे पर्यावरणीय संतुलन पर भी गंभीर रूप से पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा, सर्दी और गर्मी का सामान्य चक्र असामान्य हो गया है। अब सर्दी के समय भी गर्मी का अनुभव होता है और वर्षा के मौसम में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस बदलते मौसम का सीधा प्रभाव न केवल फसलों पर पड़ रहा है, बल्कि जीवन की विविधता में भी संकट है। अनेक वन्यजीवी विलुप्ति के कगार पर हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ रहा है। इस चुनौतियों से निपटने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। जल संरक्षण के लिए जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जल स्रोतों का पुनर्भरण हो सके। इसके अतिरिक्त अंधाधुंध वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहे और पर्यावरण संतुलित रहे। हमें अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके जल और पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही ऊर्जा के स्रोतों को सतत विकास की ओर केंद्रित करना होगा, जिससे ऊर्जा का उपयोग संतुलित और नियंत्रित तरीके से किया जा सके। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपया इस विषय पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हुए आवश्यक कदम उठाएं, ताकि हम न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। श्री प्रमोद तिवारी, 1 मिनट। सर, धरती का भगवान अन्नदाता, उसके ऊपर लाठियां चल रही हैं। उससे जो वादा न्यूनतम समर्थन मूल्य का किया गया था वो नहीं पूरा हुआ। उससे जो कहा गया था देने के लिए कुछ नहीं किया गया। ये सरकार किसानों की दुश्मन है और हमारी आवाज को डिलीटेड किसानों, अच्छा ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दे। और आज हमारी आवाज को तो ऊपर से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी बल दे रहे हैं। सर,
हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी आवाज को उठाया है, इसके लिए हम कृतज्ञता अर्पित करते हैं। पर इस सरकार को निर्देश दीजिए कि ये जो वायदे किए थे वो पूरा करें, खास तौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए। हम इनसे जवाब चाहते हैं। जो 700 किसान शहीद हुए। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, ठीक है, किसानों की जो बात, नीड फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, नथिंग एल्स नाउ। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल नहीं, व्हाट इज दिस? सर मेरा टाइम नहीं, मतलब मेरी बात के ऊपर सुनिए। आई डोंट वांट टू एंटर इनटू अ डिबेट। प्रमोद जी, इन फ्यूचर आई विल कीप इन माइंड दैट व्हाट यू से इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। व्हाट इज दिस? मैंने बैठिए बैठिए बैठिए। जयराम जी, मेरी जबान मत खुलवाइए, मेरी जबान मत खुलवाइए, प्लीज प्लीज। I will in future keep this in mind, that your assurance was a strategy and that is not appreciated. I allowed you on the assurance that you will conform to decorum and discipline. This is not done. You belong to such a senior party. अच्छा, मेरा समर्थन कर रहे हैं डॉक्टर अशोक मित्तल। धन्यवाद सभापति महोदय। नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड। डॉक्टर अशोक मित्तल, आज मैं इस सदन के, सर मुझे बोलेंगे, बोलिए आप। सर टाइम काइंडली। चलिए। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे सदन के समक्ष एक अत्यंत संवेदनशील विषय को उठाना का मौका दिया और यह विषय हमारे मिडिल क्लास परिवारों के एम्पावरमेंट से संबंधित है। सर, आरबीआई के अनुसार वर्तमान देश में 16 करोड़ करंट अकाउंट हैं और 220 करोड़ सेविंग अकाउंट है और इन दोनों में 27 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 53 करोड़ लोगों के अकाउंट्स भी हैं। सर, ये जो सभी अकाउंट्स हैं गरीब लोगों के, किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के और छोटे व्यापारियों के हैं, जो हमारे देश की और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। सर, इसके अलावा 27 करोड़ टर्म डिपॉजिट यानी एफडी अकाउंट्स हैं, जिसमें 125 लाख करोड़ जमा है। यह सराहनीय है सर कि हमारा आम नागरिक भी अकाउंट्स है उसके पास। पर सर, नागरिक के बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उसमें जो आरबीआई की गाइडलाइंस है और जो बैंकों का स्वार्थ है की वजह से आम आदमी को जमा पूंजी पर उसका जायज हक नहीं मिल रहा, उसको जायज ब्याज नहीं मिल रहा। सर, हमारी समाजवादी प्रजातंत्र में जो आदमी अमीर है और जो 27 करोड़ अकाउंट्स हैं और एफडी है उनके पास, वो 7% औसतन ब्याज मिलता है एफडी के ऊपर। मुझे हैरानी तब होती है कि जो आदमी गरीब है, किसान, मजदूर, उसे सिर्फ 2.5% औसतन ब्याज मिलता है सर, और जिनकी संख्या 236 करोड़ है अकाउंट। सर 1 लाख रुपया में एफडी में डिपॉजिट कराता है कोई इंसान तो उसको 7,000 मिलता है, और करंट अकाउंट में कराता है 0 मिलता है, सेविंग में कराता है तो 2,500 मिलता है। मतलब सेविंग अकाउंट में 1/3 हिस्सा मिलता है एफडी का, और करंट अकाउंट हो तो 0 मिलता है। सर 236 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड हैं। और सर, मुझे अफसोस है इस बात को कहते हुए कि हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक और सरकारी बैंक दोनों मिलकर ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं और गरीब, सर मेरा टाइम बीच में वेस्ट हो गया था, और गरीब आदमी के साथ अपने मोनोपोलिस्टिक स्टेटस का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो मैं सर निवेदन करूंगा सरकार से, सर आरबीआई एक्ट के 7 सेक्शन 7 के अंतर्गत पब्लिक इंटरेस्ट में सेविंग बैंक अकाउंट्स का जो इंटरेस्ट
Sri Iran Kadadi demand to increase the amount of financial assistance from 1.30 lakh to 2 lakh given under the scheme of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सदन का ध्यान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संबंधित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 2014 से पहले के 29 वर्षों में इंदिरा आवास योजना के माध्यम से केवल 3 करोड़ 25 लाख घर बनाए जाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछली 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के